students, this is your teacher for O-Level and IGCSE Islamiyat Abdullah Isaaq with yet again another video. This video today that we're going to do is on the migration to Abyssinia. और ये 5th year of prophethood में this migration to Abyssinia happened. Alright, so first of all you need to know that Muslims, including the Prophet peace be upon him, were basically worried about all of the persecutions that were happening. ये पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि persecutions जो हैं वो मुस्लिम्स पे जो हो रही थी और कैसे हुई और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम भी हुई. ठीक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला रिवील सूरह ज़ुम्र आयत विच स्टेटेड दैट अल्लाह's अर्थ इज स्पेशियस. कहा गया था गुड इज़ फॉर दोज हु डू गुड ऑन टू अदर्स एंड अल्लाह's अर्थ इज स्पेशियस. ये क्लियर मैसेज था कि अब मुस्लिम्स को और कोई लैंड देखनी चाहिए इन ऑर्डर टू माइग्रेट. So the Prophet peace be upon him started searching for areas where the Muslims should go, and he eventually came upon this area that is known as Abyssinia. उसकी reason है कि वहाँ पे जो king था whose name was Najashi and whose title was Negus, his actual name was Ashama, और उसका जो title था वो नजाशी का था, नेगस का था. He was a very just man, a very just king. So the Prophet peace be upon him thought कि सारे Muslims जो कुछ Muslims हैं उनको मैं Abyssinia भेजूँगा in order to see and look for the future prospect कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे सेटल हुआ जा सकता है कि नहीं. So in the first cohort he sent 12 men and 4 women, and this included Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu and Hazrat Ruqayya Raziyallahu Ta'ala Anha. और इनके बारे में Muhammad peace be upon him stated that they are the first to migrate in the cause of Allah after Ibrahim and Lut alayhi salam. But a very important quotation that you need to know. ये जो 12 men and 4 women थे, these people they reached Abyssinia, ठीक है, और they went by a boat. एक वहाँ पे पोर्ट था जिसका नाम है शुएबा पोर्ट. वहाँ से इन्होंने बोट ली और बोट लेके ये लोग पहुँच गए एबिसिनिया, और कुरैश को पता भी नहीं लगा ये कब पहुँचे. When the Quraysh got to know, तब तक जो है वो बहुत लेट हो चुका था. So I told you that they went through a boat and they reached Abyssinia quickly, and the Quraysh got to know it later. अब 12 men and 4 women they started living in Abyssinia. दूसरे एंड पे मक्का के अंदर जो है वो चीज़ें ज़रा डिफरेंट थी. Inside of Makkah, the Prophet peace be upon him after some time got a revelation of Surah Najm, the star. ठीक है, और वो नोबल सैंक्चुरी में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको रिसाइट करना शुरू किया. अच्छा, इस दिन जब ये रिसाइट कर रहे थे तो कुछ कुरैश मक्का भी ये सुनने आए हुए थे. सो द कुरैश वर देयर एज वेल, and these Quraysh were so invested in listening to the verses of Surah Najm that they forgot that they are non-Muslims. कुछ टाइम के लिए आप समझे वो hypnotize हो. ठीक है, and when the Prophet peace be upon him recited bow down with those who bow down, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने सजदा कर लिया. अब जब इन्होंने सजदा किया तो इन्हें समझ आ गई यार ये तो हमसे गलती हो गई है. अब गलती को ज़ाहिर कवर अप भी करना है. कवर अप करने के लिए उन्होंने रूमर फैला दिया कि एवरीबडी इन मक्का हैज़ एक्सेप्टेड इस्लाम. जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने मक्का में इस्लाम कबूल कर लिया. अच्छा, अब जब ये रूमर फैलता फैलता एबिसिनिया पहुंचा तो जो मुसलमान 12 men and 4 women एबिसिनिया थे उन्होंने कहा यार हम पहले ही होम से गए यहाँ पे. सो इट्स गुड दैट यू नो एवरीबडी इन मक्का हैज़ एक्सेप्टेड इस्लाम. सो दे रिटर्न 1 hour अवे फ्रॉम मक्का. इनको ये पता चला कि इट वॉज ऑल अ रूमर, इट वॉज ऑल अ लाई. खैर ये उस टाइम तक पहुँच गए एंड द persecutions doubled. Prophet peace be upon him did not give up, and this time around he chose 83 men and 19 women. बट ये मार्किंग स्कीम का नंबर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट नंबर्स और आपने यही इस्तेमाल करना है. एंड 83 men and 19 women were chosen to go again in the second cohort. This time Hazrat Jafar Raziyallahu Ta'ala Anhu, he was the one that was leading all of them. ठीक है, कुरैश मक्का को पता लग गया कि जी 83 men और 19 women जा रहे हैं, तो उन्होंने 2 बंदों को भेजा. एक अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया एंड द सेकंड वन वाज अमर इब्न लास. इनको गिफ्ट्स के साथ भेजा नेगस के पास और उनसे कहा कि यार इनके बारे में जाके उन्हें कहो कि हमें ये लोग वापस चाहिए, और ये गिफ्ट्स नेगस को देना, वो खुश हो जाएगा और वो ये लोग हमें वापस कर देगा. कुरैश के जो लोग थे, दीज मैन रीच्ड फर्स्ट. ये अबिसिनिया पहले पहुँच गए, सीधा पहुँचे नेगस के किंगडम में. उससे जाके कहा कि जी सम मैन ऑफ आवर लैंड्स हैव गिवन अप द रिलीजन ऑफ देयर फोर फादर्स. अपने अबाओ अजदाद का जो रिलीजन है वो गिव अप कर चुके हैं, एंड दे हैव इन्वेंटेड ए न्यू रिलीजन ऑल टुगेदर. उन्होंने एक बिल्कुल नया रिलीजन जो है वो इन्वेंट कर लिया. द लीडर्स ऑफ द कुरैश वांट देम बैक, एंड वी वांट टू इन्फॉर्म यू दैट दीज पीपल आर इन योर लैंड्स. ये आप लोगों के लैंड्स में इस वक्त लोग मौजूद हैं.
नेगस को जब ये पता चला तो उसने कहा कि जी मुझे आपने नहीं बताया और ये लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, नया रिलीजन भी आ गया, सब कुछ हो गया, मैं हमसाया हूँ, मुझे तो बताओ। खैर उसने मुस्लिम्स को बुला लिया और आपको ये याद होना चाहिए कि प्रॉफिट ईसा अपॉन ने क्यों भेजा था इनके पास, बिकॉज ही वाज अ जस्ट किंग। सो नेगस ने मुस्लिम्स को बुलाने के बाद पूछा कि व्हाट डू यू प्रेजेंट, क्या है कि जी आप क्या लेके आए और क्या फॉलो करते हो और कौन सा रिलीजन है। तो हज़रत जाफ़र जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई थे, ही स्टेप्ड अप एंड ही सेड दैट किंग वी यूज्ड टू वर्शिप मल्टीपल गॉड्स, हम लोग मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करते थे। वी वर मेन ड्रेंच्ड इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से मुराद है कि हम लोग उस वक्त उस दौर में थे, उस फेज़ में थे कि हमें पता नहीं था कि असली खुदा कौन है। वी यूज़ टू कमिट अट्रॉसिटीज़, हम लोग जुल्म किया करते थे। वी यूज़ टू ईट हराम, हम हराम खाया करते थे। देन केम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु मेड अस बेटर पीपल हु वाज अ लाइट इन द डार्कनेस फॉर अस। नेगस ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई है, इसका कोई प्रूफ भी दे दें। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु वेरी केयरफुली रिसाइटेड द वर्सेस 17 to 26, नाम वर्सेस का नंबर याद रखना बच्चे, ऑफ सूरह मरियम, जिसके अंदर हज़रत ईसा का जिक्र हुआ किया गया था, हज़रत याह्या का जिक्र भी किया गया। तो उसको नेगस ने जब सुना तो ही वॉज अ क्रिश्चियन एज वेल, तो ही वॉज मूव्ड। उसने कहा बाय गॉड दिस एंड द बाइबल आर द लाइट ऑफ द सेम कैंडल। ये जो आपने सुनाया है ये और जो बाइबल है वो एक ही कैंडल की दो डिफरेंट शमा है, ठीक है। वो बड़ा खुश हुआ। खैर उस शाम मुसलमान वापस चले गए। अब जब वापस गए तो जो कोटियर से नेगस के उनके जो है ना वो लालच ख़त्म नहीं हो रही थी, ठीक है, दरबारी जिन्हें कहते हैं, उनको था यार गिफ्ट्स आए हैं, वापस चले जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेगस से कहा कि यार इनसे ज़रा पूछो मुस्लिम से अबाउट जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रा पूछो। नेगस ने कहा जी सुबह आएंगे पूछ लेंगे। अगले दिन उसने बुला लिया सबको। उन्होंने हज़रत जाफ़र से कहा कि हज़रत जाफ़र से पूछा कि बताएं जी आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु सेड दैट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज द सन ऑफ हज़रत मरियम एंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नेगस सेड कि वी समहाउ बिलीव द सेम, हमारा भी ऑलमोस्ट यही बिलीव है। उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उतरा, उसकी बड़ी सी कुर्सी थी, उससे उतरा, ही केम ऑन द फ्लोर, ही ड्रू अ लाइन, वाज अ वेरी थिन लाइन, ही सेड द थिकनेस ऑफ द लाइन इज़ द डिफरेंस इन आवर रिलीजन्स। उसने कुरैश मक्का से जो दो लोग आए हुए थे उनसे कहा गिफ्ट्स पकड़ो, यहाँ से निकल जाओ, मुसलमान मेरे पास रहेंगे, इनको मैं भेजूँगा नहीं कहीं पे, दीज आर नाउ माई गेस, ऑल राइट। सो बेटे ये पूरी माइग्रेशन जो एबिसीनिया थी, सवाल मुख्तलिफ आते हैं। एक सवाल जो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा बच्चों को वो मैं बता देता हूँ। राइट एन अकाउंट ऑफ द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द मुस्लिम्स टू एबिसीनिया। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट माइग्रेशन पढ़ के सिर्फ पहला कोहॉर्ट लिख देते हैं। बेटे असल में जो सवाल है वो फर्स्ट माइग्रेशन जो मुसलमानों ने की थी, फर्स्ट माइग्रेशन एबिसीनिया की, सेकंड माइग्रेशन मदीना की बनती है। तो आपने पूरा अकाउंट देना है माइग्रेशन टू एबिसीनिया का। सबसे पहले आपने पहले पैराग्राफ में वो वर्स ऑफ सूरह ज़ुमर बताना है और बताने के पर्सिक्यूशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, फिर फर्स्ट ग्रुप के बारे में बताना है। सेकंड पैराग्राफ आपने बताना है सूरह नजम के बारे में एंड व्हाट वाज द रूमर दैट स्प्रेड। थर्ड पैराग्राफ आपने बताना है कि सेकंड कोहॉर्ट क्या गई और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु व्हाट वाज द स्पीच दैट ही डिड इन फ्रंट ऑफ नेगस एंड व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ नेगस। फोर्थ पैराग्राफ में आपने बताना है हज़रत ईसा के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा नेगस ने, हज़रत जाफ़र ने क्या कहा और फिर नेगस ने उनको वापस कर दिया। जो गिफ्ट्स भेजे थे उसके बारे में बताना है। कोटेशंस बेटे लाजमी हैं, कोट्स मत भूलिएगा। 400 to 450 वर्ड्स या 500 वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं। 16 to 18 मिनट्स में आपने आंसर करना है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बॉयकॉट बनु हाशिम। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।